આજના સ્વર્ગશ્રી સતુભાઈ દેવુભાઈ ઠાકરિયા જેઓ અમારી સાથે ધારાસભ્ય તરીકે ઘણી બધી કામગીરી ઉમરગામ તાલુકાની અંદર અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ કરી છે. એમના યાદગારીની અંદર શોકાંજલિ અર્પણ કરવા માટે આજે એમના આજના આયોજક શ્રી પ્રભુભાઈ સતુભાઈ ઠાકરિયા તથા દિલીપભાઈ અને પંકજભાઈ એ ચારે ચાર પુત્રોએ કાયમ માટે પિતાનું હૃદયની અંદર સ્થાન આપવા માટે આ પ્રકારે એમના યાદગારીની અંદર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની અંદર આયોજન કર્યું છે. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની અંદર સ્ટેજ પર બિરાજમાન ભારતીય જનતા પાર્ટી વલસાડ જિલ્લાના મહામંત્રી માન્ય શ્રી ગણેશભાઈ, ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જેમની અત્યારે નિમણૂક થઈ છે નરેશભાઈ, અમારા જિલ્લા પંચાયત અને સંકલન સમિતિના સભ્ય માન્ય શ્રી મુકેશભાઈ, દીપકભાઈ, અમારા દિલીપભાઈ ભંડારી તથા હર્ષદભાઈ, તેમજ સ્ટેજ પર બિરાજમાન અનેક મહાનુભાવો છે એ સર્વને હું નમન કરું છું. અને આજે ઉમરગામ તાલુકામાં એક ઇતિહાસ અને ઇતિહાસની સાથે પુત્ર કેવા હોવા જોઈએ એની પણ એક ફરજ અપાવતી યાદ અપાવતી આ ઘટના આપણા સૌને યાદ કરવા માટે આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ સતુભાઈના માનની અંદર સતુભાઈ અનેક સમાજને દાખલા પણ આપ્યા છે. જ્યારે એમની સાથે એક પીએ તરીકે કામગીરી કરતા હતા એ માંડાના લાઇબ્રેરી પાસે રહેતા રામાભાઈ, અને એમનું જ્યારે દરિયાની અંદર અવસાન થયું અને એ વખતે સતુભાઈને ખબર પડી કે એનું અવસાન કોઈ કારણસર કોઈ અનન્ય કારણસર થયું છે ને તપાસ થવી જોઈએ. સતુભાઈ બહાર હતા તેમ છતાં તરત એ શમશાન પર પહોંચવા માટે અને શમશાન ઉપર ડેડ બોડીને મૂકવામાં આવેલી હતી. તેમ છતાં પણ એમણે આ ડેડ બોડીને ઉતારી અને પોલીસ તપાસમાં મૂકી. ઉમરગામ તાલુકાની અંદર બીજું પણ કામગીરી બહુ સારી છે. ભૂમિ દાનની અંદર મળેલી જમીન એની કમિટી બનાવીને માન્ય શ્રી સતુભાઈ, ઉમાભાઈ જોશી અને મામલેદાર અને પ્રાંતમાંથી અધિકારીઓ એ સાથે મળીને ઉમરગામ તાલુકામાં ભૂમિ ખેત મજૂરોને 4 એકર જેટલી જમીન પણ એમના દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. આ પ્રકારે અનેક કામો માન્ય શ્રી સતુભાઈએ કરેલા છે. એમનો તાજનો સાક્ષી છું. ઉમરગામ તાલુકાની અંદર વાલી સમાજની સ્થાપના કરી એમાં પણ શ્રીફળ હતો. એટલે આ પ્રકારે એમની યાદ આજે છોકરાઓ જે ખરેખર યાદગાર પ્રસંગને પિતા તરીકેના જે કર્તવ્ય છે એ દીકરાએ નિભાવ્યા છે. અને એટલા માટે અહીંયા અનેક લોકો આવ્યા છે. પોતે સમાજના આગેવાનો હશે, સરકારની અંદર ચૂંટાયેલા પદાધિકારી હશે કે ગામના આગેવાન કે વડીલ હશે, એમણે પણ પિતા અને માતાની સંભાળ રાખવી એ આપણી બધાની ફરજ છે. અને જે રીતે પ્રભુભાઈએ આગેવાની લઈ અને જે કાર્યવાહી કરી છે આપણે બધા જ કરતા રહીએ ને માતા પિતાને સેવાની અંદર અને યાદગારી અંદર એવા કાર્યક્રમો કરીએ એવી નમ્ર ભાવે વિનંતી છે. 270 જેટલી ટીમો એના કેપ્ટનો આજે છેલ્લા 5-6 દિવસથી રમીને
જે શિસ્તતા જાળવી છે એના માટે પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આશા રાખું છું કે આ જ પ્રકારે રમત એ ખેલદિલીનો સંગઠિત રહેવાનો સંદેશો છે અને એમાં આપણે બધા સારી રીતે શિસ્તબદ્ધ રીતે કોઈ પણ જાતને સમાજને કોઈ ડાઘ ન પડે એ પ્રકારે રમત રમીએ એવી અપેક્ષા રાખી આપ સૌનું સન્માનને સાથે હું મારું પ્રવચન બંધ કરું છું. ભારત માતા કી જય. थैंक यू आदरणीय रमन भाई, बहुत सुंदर आपने कीधु. आपकी बातों ने ऐसा बताया कि हमें रामायण की याद आ गई. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो बातें थी, बिल्कुल उसी प्रकार की जो है कामगिरी ये पिता के जो है पुत्रों ने बताई है. पिता के प्रति आभार बताया है कि भाई पिताजी को अगर याद करना तो कैसे करें. जब इंसान सामने होता है तो उनको हम उनके डर से उनके प्यार से याद करते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ये दुनिया जो याद कर रही है, ये हमारे सारे समाज के लोग जो याद कर रहे हैं. बिल्कुल ये जो है उनकी झांकी थी. उन्होंने जो कर्म किया था, उन्हें जो काम किया था, हमारे इस तालुका को जो महाराष्ट्र में हुआ करता था उसको गुजरात के साथ कनेक्ट कराने के लिए जो उन्होंने कामगिरी करी थी, बिल्कुल बढ़िया कामगिरी करी थी. मैं अंपायर से निवेदन करूंगा जल्द से जल्द मैच शुरू कराएंगे. फाइनल मुकाबला श्रद्धांजलि क्रिकेट क्लब सीजन 4 फाइनल मुकाबला. तो बहुत ही बढ़िया जिस प्रकार से यहाँ पर बगुजर हेलो तो निकल चुके हैं. मैं बल्लेबाजी का आगाज करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ मोनिल पटेल साइड से बिलोंग करते पैकर के रूप में लिया गया है. पूर्व कारोबारी अध्यक्ष चिंतन भाई पटेल बता रहे हैं. प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे. तो दोनों ही बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज के बीच में देखा कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, पर हिटू के ऊपर इनामों की घोषणा दिव्य सरीगाम की ओर से बिलोंग हर एक सिक्सर के लिए 500 रुपए का पुरस्कार रखा है. 4 ओवर का ये मुकाबला जरूर है. और हमारे रवि भाई की ओर से जो चैंपियन बनेंगे उनके लिए ट्रैक पैंट जो है प्राइज के रूप में लाए हैं रवि भाई मांडा से. तो हम शहीद पाड़ा जय जगमोड़ी पाली के बीच ये फाइनल मुकाबला 4 ओवर का मुकाबला रहेगा. 1 ओवर पावर प्ले, 4 गेंदबाज के इस्तेमाल करेंगे. विनय रियो दिलीप भाई भंडारी की ओर से जीतने वाली टीम को 2100 रुपया और रनर्स अप टीम को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार है. तो बहुत ही बढ़िया इस बार 4 ओवर का मुकाबला फाइनल मुकाबला रहेगा. और विनय रियो गेंदबाजी करने के लिए तैयार. जय जगमोड़ी पाली की ओर से यहां पर ओम शाही पागीपाड़ा की ओर से यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं मोनिल पटेल और हेतु दुमाड़ा. धारासभ्य श्री की ओर से जीतने वाली टीम को कमेटी को यहाँ पे इस सुंदर आयोजन किया है कि उसमें सपोर्ट के रूप में 5-5 हजार रुपया हमें धन्यवाद. मुकेश भाई और चिंतन भाई की ओर से 5-5 हजार रुपया. तो बहुत ही बढ़िया भारी संख्या में दर्शकों उपस्थित हैं और फाइनल मुकाबला यहां पर ओम शाही पागीपाड़ा और जय जगमोड़ी पाली के बीच मुकाबला 4 ओवर का मुकाबला रहेगा. 4 गेंदबाज रहेंगे और 1 ओवर पावर प्ले. विनय रियो पेकर के रूप में लाया गया है यहां पर महाराष्ट्र की ओर से, और मोनिल पटेल वलसाड़ की ओर से बिलिंग करते हैं. और पहले ही गेंद पटकी गेंद को प्रहार किया लेग साइड की दिशा में. बालकेत सरपंच श्री भरत भाई की ओर से कमेटी को 5000 रुपये का नगद दिया जा रहा है. धन्यवाद. राकेश भाई की ओर से 1 रन के साथ वहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है. यहां पर राकेश भाई की ओर से 5000 रुपये का
विनय अगली गेंद लेके फिर से तैयार, इस बार हितू दुमाड़ा सामने मौजूद। इस बार अच्छी गेंद रही, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाया और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बल्ले को कुछ अंदरून किनारा जरूर लिया था, लेकिन रन बनाने का कोई चांस नहीं। विनय रियो काफी बढ़िया यहां पर ऑलराउंडर की किरदार निभाते हैं जय जगमोड़ी पाली की ओर से। इस बार अच्छी गेंद रही, बाहर की तरफ जाती नजर आ रही, लेकिन फिलहाल बल्ले पर आई नहीं और काफी बढ़िया गेंदबाजी। डॉट गेंद में एक बार फिर से तब्दील किया और अनिल पटेल ने जब सिंगल पहली गेंद पर निकाला था वही अब हितू दुमाड़ा सामना करने के लिए तैयार। इस बार हवा में खेल बैठे हैं, फील्डर उसके नीचे आते हैं या ना, और आ चुके हैं और पहली सफलता वहां पर मिलती हुई जय जगमोड़ी पाली को। और सचिन ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया और हिट रानी जी की ओर से मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए प्राइज दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई राय की ओर से 5,000 रुपये का सपोर्ट मिला है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप भाई भंडारी जी की ओर से जीतने वाली टीम को 2100 रुपया, रनर्स अप टीम को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार। अक्षु बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं वन डाउन के तौर पर, हिटो आउट होने के बाद। और विनय रियो काबिल तारीफ यहां पर गेंदबाजी। फाइनल मुकाबला, दर्शकों को पूरे ग्राउंड में खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह दे रहे हैं यहां पर खिलाड़ियों का। और अक्षु काफी जाने माने खिलाड़ी हैं, काफी बड़े शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं। आज उनका बल्ला फाइनल में किस प्रकार से चलता है ये देखने वाली बात है। जिस प्रकार से विनय रियो गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी सामने। इस बार अच्छी गेंदबाजी, क्या बात है भाई, टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था गेंद को और खेलने के प्रयास करे थे। अभी अभी बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं और 4 ओवर का मुकाबला है। जिस प्रकार से डॉट निकलते जाएंगे तो टीम के ऊपर काफी असर पड़ता है, लेकिन गेंदबाजों के लिए बहुत बढ़िया। इस बार बहुत ही बढ़िया, टप्पा गिरने के बाद उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। पहली ओवर समाप्त, 1 विकेट का नुकसान पर रन बन चुके हैं 1। काफी अच्छी गेंदबाजी रही विनय रियो की, 1 ओवर, वो भी ओवर पावर प्ले का, और विकेट भी और 1 रन। काफी कंजूसाई गेंदबाजी की है यहां पर। जय जगमोड़ी पाली अगले साल भी ये चैंपियन हुई थी, इस बार भी फाइनल में प्रवेश किया है ओमसाई पागीपाड़ा के साथ। तो इस बार गेंदबाजी के लिए उतर चुके हैं भाविक। देखना है युवा प्रतिभा भाविक गेंदबाजी के लिए दूसरी ओवर लेके आए हैं। देखना है मोनिल पटेल वलसाड़ से हैं ये पैकर खिलाड़ी, काफी काबिल तारीफ। सेमीफाइनल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करजगाम के विरुद्ध में उन्होंने की थी और जहां पर 84 रनों का लक्ष्य दिया था और वही बल्लेबाज और उनका साथ निभाया था हितू दुमाड़ा ने। फिलहाल उनकी काबिल तारीफ मोनिल पटेल, और काफी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी। अपने नाम छक्के लगाकर उन्होंने पागीपाड़ा को फाइनल में प्रवेश करवाया। आज देखना है इस बार फाइनल में किस प्रकार का उनका बल्ला चलता है। भाविक गेंदबाजी करेंगे उनके लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया ऑफसाइड के दिशा में करारा जवाब दिया है, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
से उन्होंने ये सिक्सर हासिल किया, काफी लंबा सिक्सर लगाने में कामयाब रहे। भाविक महंगे साबित जरूर हो चुके हैं। इस बार देखेंगे राउंड विकेट गेंदबाजी इस बार फिर से मोनिल पटेल के लिए। इस बार वो शॉट का इस्तेमाल किया, गेंद जा रही वन बाउंस, चौका, काफी खूबसूरत चौका यहां पर। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। मोनिल पटेल, एक बार उनका चलता है बल्ला तो दुधारी तलवार की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी बॉलर परेशान हो रहे। फिलहाल विनय रियो समझाते हुए किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है मोनिल पटेल के लिए। देखना इस बार क्या हो सकता है। तो अपने रनिंग में थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखना है। बॉलर काफी परेशान, काफी प्रेशर में आ चुके हैं क्योंकि यह फाइनल का प्रेशर खिलाड़ियों के ऊपर रहता है। फिलहाल देखना है बड़े खिलाड़ी के सामने। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, ग्राउंड वाले रिवर्स शॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार एक ही रन लेने का मौका मिलेगा इस बार, और छोर बदला। और देखो ये कमाल की नजाकत है, सीधे बल्ले तो सीधे बल्ले, उल्टे बल्ले भी बना रहे हैं चौके छक्के के साथ। कमाल की बल्लेबाजी। अगर ऑक्साई पागीपाड़ा फाइनल विजेता प्राप्त करती है तो हमारे सरीगाम के जो राकेश राय है उनकी तरफ से 11,000 रुपया का पुरस्कार इनाम मिलेगा। भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। तो देखना है इस बार भाविक अक्षु के लिए गेंदबाजी करेंगे। देखो फाइनल का प्रेशर बहुत ही बाहर ऑफ साइड की दिशा में। फाइनल का प्रेशर, फाइनल का दबाव, जो दबाव झेलेगा वो जीत जाएगा, जो दबाव नहीं झेल पाएगा वो टेंशन में रह जाएगा। तो भाविक की अगली गेंद देखना है अक्षु के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद को प्रहार किया लेग साइड की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। अब जा चुके हैं मोनिल पटेल। काफी बढ़िया यहां पर पेकर के रूप में यहां पर ओमशाई पागीपाड़ा ने बलसाड़ से मंगवाया है, लेकिन उनका काबिल तारीफ बल्ला रहा है इस पूरी श्रृंखला में। शॉट तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन प्लेसमेंट नहीं था, सीधा फील्डर के सामने खेल बैठे थे। दैट्स वाई यहाँ पे चौका नहीं हासिल कर पाए। अब वो तैयार है गेंदबाज के सामने, तैयार, बिल्कुल तैयार। तो इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राउन द ग्राउंड और एक साइड के दिशा में डिप में खेला, जरूर एक रन लेने का मौका मिलेगा। अब थोड़ा सा दबाव में डाला है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बन चुके हैं 19 रन। आगे का हाल हमारे बगु सर बताएंगे। जिस तरह शुरुआत यहाँ हुई है ऐसा अगर चलता रहा तो फिर करीब करीब 40-45 हो जाएगा, वो अच्छा स्कोर कहा जाएगा। फिलहाल ये जो बल्लेबाज मैं बता दूं, ये मोनिल पटेल पिछला जो मुकाबला था 84 का टारगेट दिया था, उस पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मैच को जिताने में कामयाब अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल मैं बता दूं ये हमारी जो टीमें दोनों खेल रही है, ओमशाई पागीपाड़ा और जय जुगुड़ी पाली डूंगरपाड़ा, ये हमारे आदरणीय एमएलए सर जो टूर्नामेंट वाली सब मेगा की टूर्नामेंट है, दोनों चैंपियन टीम है ये। तो ये एक बड़ा एक मौका है सभी को, अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखने का मंच पर बैठे सभी महानुभाव को भी मौका मिलेगा। बहुत अच्छी है दोनों टीमें हैं। बैटिंग साइड पे फिलहाल ये यहाँ पे ओमशाई पागीपाड़ा अभी वाली समाज मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट की जो चैंपियन टीम है वो फिलहाल बैटिंग कर रही है, और सामने है जय जुगुड़ी पाली 2 साल पहले ही चैंपियन हुई थी। तो दोनों बड़ी टीमें हैं ये उमरगाम की, और उसमें सोने पे सुहागा। जिस प्रकार से जो पैकर हमारे लाए जो मोनिल पटेल बलसाड़ से स्पेशली बिलोंग करते हैं, ये भी बड़े खिलाड़ी है और उनका जलवा दिखा। पिछला जो मुकाबला था उसमें मोती विपिन भाई देखा होगा, आपने एक बॉलर था तो पिछले जो मुकाबला देखा था उसमें रबाना करके गेंदबाज थे, वो इतने अच्छे, अगर वो मंच पर बैठे होते तो आप देखते उसकी गेंदबाजी को, आपको गेंदबाजी देखने का मजा आता है। जो इतने बढ़िया गेंदबाजी करते थे
और कुल मिला के वो मैच हारे, वो पुनर से खेले इस बार मैच, लेकिन वो सेमीफाइनल में हारे। लेकिन ये जो फाइनल मैच है उसमें भी ये मोदी पटेल का बल्ला हितू धुमारा जल्दी आउट हुए आज। और फिलहाल टीम का स्कोर है 20 रन। मैं दर्शकों को बता दूं ये फाइनल मैच है, तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ, कुल मिला के एक गेंद हुई है। पंकज ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, पंकज दबे, ये भी एक बड़े खिलाड़ी है, बड़ा नाम है पंकज दबे। उड़ाया इस बार, उड़ाया गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए तब्दील हो गई। टीम का स्कोर 26 हो गया, 26। मौका दिया, रूम मिला था बल्लेबाजी करने का, लेकिन बच्चों के पल्ला जल्दी घुमा लिया था। नतीजा डॉट पे गेंद, शायद आउट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, तालमेल सही नहीं रहा, नतीजा और एक विकेट का शायद यहां पतन होता हुआ, और एक बल्लेबाज आउट हुए 26 के स्कोर पर। बहुत ही बढ़िया यहां पर या रही नहीं, और जिस प्रकार से यहां पर हमसाई पागीपाड़ा के लिए राकेश राय सरीगाम की ओर से उन्होंने अगर फाइनल विजेता प्राप्त करती है तो 11,000 रुपया का पुरस्कार इनाम रखा है। तो अक्षु आउट होने के बाद एक नया बल्लेबाज जाते हुए नजर आ रहे हैं, अश्विन भोया, ये भी पैकर हैं, सिलवास की ओर से आए हैं यहां पर हमसाई पागीपाड़ा में। काफी बढ़िया यहां पर खिलाड़ी ये भी हैं। तो दोनों पैकर आमने सामने, एक बलसार से बिलोंग करते हैं और एक सिलवासा। मोनिल पटेल बलसार से हैं, अश्विन भोया सिलवासा से। काफी बढ़िया दोनों पैकर ये बल्लेबाज। अब देखेंगे इस बार मेरे ख्याल से उनके लिए पैकर गेंदबाज पंकज दवे महाराष्ट्र से यहां पर डहानू चिखलागाम से यहां पर बॉलिंग करते हैं, और यहां पर मौका मिला है जय जगमोड़ी पाली के टीम में उनको शामिल हुए हैं, और काफी बढ़िया उन्होंने भी प्रदर्शन दिखाया, अपने गेंदबाज हो या बल्लेबाज, काफी ऑलराउंडर की किरदार निभाया है। इस बार अश्विन भोया के लिए गेंदबाज करेंगे पंकज दवे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं अश्विन भोया। तो 4 ओवर का मुकाबला है, थोड़ा उतावला करना होगा खिलाड़ियों को। तो इस बार बहुत ही बाहर, अंपायर का इशारा वाइट। तो हेलो रास्ता
फिर से अंपायर हमारे तरफ घूमे, अतिरिक्त रन, बोनस रन मिलते हैं वाइड के रूप में। जी वाइड के लिए आपके पास रिव्यू नहीं है, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन आपके ऊपर नजर रखने के लिए अंपायर रखा, अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन, अंपायर कॉल आखिरी कॉल। तो टीम का स्कोर 44 रन। यहां से बल्ला चलाना होगा मोनिल पटेल, बॉलिंग मार्क के ऊपर बल्लेबाजी के लिए तैयार। इस बार कवर पे लॉन्ग ऑफ रीजन में खेली है और फील्डर ये देखे चकमा देती हुई गेंद थोड़ी सी घूमी और गेंद को देखते रह रही हो और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। सामने थे लेकिन आउटफील्ड की वजह से ये निकल तो अगली गेंद उसी बीच जरूर अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पे मिसाल इस बार कवर के ऊपर से खेली है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गैप में भी और मैप में भी चौका। देखिए अगर बाकी पड़ा मैच को जीतती है तो सरीगाम से और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे राकेश राय सर ने भी 11,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। तब बजा डीजे, अब गेंदबाज चिंता में, अब गेंदबाज चिंता में, बल्लेबाज को डालू तो कहां पर, 2 गेंदों का खेल बचा, आवाज आई है, क्या इस आवाज के साथ छक्का आएगा? नहीं खराब गेंद और रोकिए पर रन नहीं जरूर, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड में और इजाफा होता हुआ 53 रन, टीम के 50 पूरे। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है, एक बड़ी हिट देखने को मिल सकती है दोस्तों। क्या मौके पे छक्का लगेगा? मोनिल पटेल ऑन हिज मार्क, इस बार 80 दियर सटीक लॉन्ग ऑन डिजर में रोकी जरूर है पे, रन नहीं लिया। देखिए रन नहीं लिया, आखिरी वक्त में आप रन लेना प्रयास कीजिए, आपके फायदे के लिए ये रन रहते हैं। आप 2 बार गवाए सिंगल रन, नुकसान किसको? टीम को और खुद को भी। फिलहाल आखिरी गेंद, अब चौथे ओवर की आखिरी गेंद, रुका हुआ स्कोर देखा जाए 53 रन। विशाल एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे तैयार, ये देखिए नुकसान का भुगतान, सड़क पे कड़क। पर मैच को जीतने के लिए 60 रन बनाने होंगे। 24 गेंदों का खेल है, 24 गेंदों का खेल है, 60 बनाने हैं। मोनिल पटेल की बात करूं तो 13 गेंदों में 38 रन, 3 सिक्सेस, 3 चौके, 4 चौके लगाए। कमाल की सराहने वाली बल्लेबाजी मोनिल पटेल। देखिए सेमीफाइनल मुकाबले की बात करूं, मोनिल पटेल ने उनका कैच छूटा, उसके बाद 50 रनों की पारी खेली थी, बड़ी पारी, उसी के चलते अब ये फाइनल तक का सफर तय हुआ है। खिलाड़ी है, बड़े सितारे, यूट्यूब स्टार खिलाड़ी भी है मोनिल पटेल। तब हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर भगू सर और विपिन डोगरकर भी, बहुत ही सुंदर आवाज दोनों ही। 4 ओवर का खेल है ये, फाइनल मेगा फाइनल मुकाबला और 60 रन भी बनाने हैं। पहले बल्लेबाजी करते 59 बने हैं, आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर 59 तक पहुंचाए टीम को मोनिल पटेल ने। तो यहां से अब गेंदबाजी कैसी रहेंगी ये भी देखना है। प्लीज जय जोगमुंडी पाली को गुजारिश करता हूं अपने सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे मैदान के ऊपर। तो दोनों बल्लेबाज अपना पल्ला लिए निकल चुके हैं। 15 के औसत से आपको मैच खेलना है। पहला पिछला जो मुकाबला था स्टार 11 करेजगांव वर्सेस ऑफसाइड बागी पर बीच में जिस प्रकार मुकाबला हुआ था, उसी प्रकार की बल्लेबाजी आपको दिखानी पड़ेगी। अभी करीब करीब 15 का औसत है। और मैं बता दूं, जब मंच पर बड़ी बड़ी हस्तियां पर बैठी हो और स्पेशली
हमारे बीच मंच पर हमारे आदरणीय एमएलए सर और पूर्व मंत्री ऐसे बैठे हो प्रमुल्ला पाटकर सर, तो फिर उत्साह और इधर बढ़ ही जाता है बल्लेबाजों का। और अभी महानुभाव है तो ये एक मौका यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए है अपना नाम बनाने का। और बता दूं मैं सरीगांव के अग्रणी जयेश कंजारिया की ओर से हैट्रिक विकेट अगर गेंदबाज लेते हैं तो उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल हम आज की ओर चलते हैं 15 का औसत के हिसाब से 60 रन बनाने हैं जय जगमोड़ी पाली के कप्तान को बता दूं मैं, ये अगर ये मुकाबला आपको जीतना है, ये फाइनल मुकाबला जीतना है, ये श्रद्धांजलि कप हेलो स्वर्ग बगु सर, अगर सरीगाम ओम साई पागीपाड़ा के कोई भी गेंदबाज विकेट चटकाते हैं तो दिव्येश आहिर के ओर से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा विकेट के लिए। और जयेश गंजारिया सरीगाम की ओर से ओम साई पागीपाड़ा अगर हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार रखा है। तो यहां पर चेस के लिए 2 सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के ऊपर, एक तरफ पंकज एक तरफ विशाल। तो 60 बनाने 60 रन 59 बने हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहां से प्रमुख गेंदबाज के रूप में जरूर पंकज तो हमारे बीच में कीर्ति भाई राय उपस्थित है। मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कीर्ति भाई राय सरीगांव। तो चेस के लिए 2 सलामी बल्लेबाज पंकज और विशाल की जोड़ी, राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन अब देखने को मिलेगा। पर गेंदबाजी के लिए मोनिल पटेल पैकर के रूप में आइकॉन बनाम टू आइकॉन, एक तरफ गुजरात का पैकर एक तरफ महाराष्ट्र का पैकर। तो देखते हैं आइकॉन बनाम टू आइकॉन, एक तरफ मोनिल पटेल एक तरफ पंकज डाइव। पहली गेंद चेस के लिए पावर प्ले का पहला ओवर, 4 ओवर का ये मुकाबला। और ये घुटना टेक तमाशा देख, आ बैल मुझे मार, गेंद सीमा रेखा से बाहर, उत्साह बढ़ता हुआ, हौसला बुलंद होता हुआ। क्यों देखिए समय के साथ चलना है हमें, मुकाबला रफ एंड टफ है। 60 रनों का पीछा करते पहली गेंद पे बड़ी हिट सिक्सर आ चुका है। क्या पंकज ये मुकाबला जीता कर जाएंगे? भारी तो जरूर पड़े गुजरात के ऊपर महाराष्ट्र के बल्लेबाज, पर मैदान के बीच की ये लड़त है, यहां कौन किसके ऊपर हावी होगा ये तो 4 ओवर के बाद ही पता चलेगा। अगली गेंद पर विकेट गेंदबाजी करते हुए पंकज सामने बल्ला लेकर तैयार, इस बार कट किया, पंच हुक किया है ऑफ साइड की दिशा में, एक्स्ट्रा डी पॉइंट कवर के ऊपर से और सीमा रेखा से बाहर। 2 गेंदे 10 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। तो मोती भाई मैंने पहले बताया कि एक ऐसे दोनों जो क्षमता रखती है 15 के औसत हिसाब से खेलना, जिसमें 10 तो आगे, पहले गेंद पे 6 मारा, उसके बाद यहां से एक बाउंड्री के बाहर गेंद 4 में तब्दील हो गई, यानी 10 आगे 2 गेंदों में। और सर देखिए सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है मोड़गांव प्रतियोगिता, उसमें ये बल्लेबाज चैंपियन रहे हैं, वहां पर जाकर अपना दबदबा बनाया है। मैं बता दूं ये बल्लेबाजों को लेकर अवसर कमाने का है। हमारे करीगाम के आदरणीय सरपंच श्री कमलेश भाई की ओर से बल्लेबाजों को हर 6 पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार है। हर एक सिक्सर के हर ऊपर एक 6 पर। जी हाँ, कबूल कीजिए, ले लीजिए, दे रहे हैं दिल खोलकर। तो अभी यहां से 10 तो आगे 2 गेंदों में 15 के औसत से आपको खेलना है। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी चलती रही तो फिर बड़ा फायदा, यहां पे कट दिया था लेकिन ही तो मौका था कीपर के पास, पर विकेट से एकदम नजदीक तैनात। देखिए 15 के औसत के हिसाब से चल में 10 रन तो आ चुके हैं, अभी भी 3 गेंदों का खेल और जैसे, और सामने बड़े गेंदबाज है, काफी विकेट टेकर ये बहुत सभी। मोनिल पटेल बल्लेबाजी बहुत अच्छी की उन्होंने, फिलहाल गेंदबाजी में भी रुख बना रहे हैं कि भाई एक आध विकेट जल्दी से मैं चटका लूं। फिलहाल धीरे धीरे बॉल को पार करेंगे, स्पीच राठौर गेंदबाजी स्पीच, मौका मिला, बड़ा शॉट, कमलेश भाई 1100 आपका हो गया, 1100 आ गया है। तो अभी इस टूर्नामेंट में एक से एक बढ़कर पैकर हमें देखने को मिले। मैं 220 टीमों के कप्तान को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पैकर सिलेक्शन किए थे, बहुत अच्छे लाए आप, उन्होंने भी अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट में सहयोग किया।
तो सभी ब्रेकरों को भी धन्यवाद करते हैं। फिलहाल 16 रन हो चुका है स्कोर बोर्ड पे। रन रेट तो पाली जाई पाली ने बना लिया है। फिर से मोहनिल पटेल हल्के कदमों से बॉल को पार करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे ड्राइव स्ट्रेट खेलना चाहते थे अश्विन खोला, बहुत बड़े खिलाड़ी ये, बहुत तेज भागते हैं गेंद के पीछे, रोकने में कामयाब रहते हैं, बहुत लंबा तय सफर तय करते हैं। अभी फिलहाल 4 गेंदें हो गई है, 16 बने हैं, 5 गेंदों के 5 गेंदें, 16 रन हुए, 2-6 आए उसमें। फिर से अभी आखिरी गेंद बल्लेबाज को बता दूं मैं पहले ओवर की 16 हुए हैं। टारगेट आपको बहुत बड़ा चेस करना है, 60 रन बनाने हैं। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी और ओवर की समाप्ति हो गई। यानी ये अच्छा ओवर रहा। पिछली 2 गेंदें बहुत अच्छी की मोहनिल पटेल ने, ये फायदा हुआ। तो अभी फिलहाल जो स्ट्राइक पे भी बल्लेबाज जाएंगे ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। विशाल का बल्ला, ये भी बहुत बार कई बार मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज हुए ये बल्लेबाज विशाल वघात, तो ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कप्तान सरिगाम से आगे बढ़ के कब सोच में कि किसको गेंदबाजी सौंपी जाए ताकि कम रन आए आने वाले ओवर में। देखिए सर, विकेट के लिए, छक्के के लिए तो 1100 रखे हैं करजगाम के सरपंच श्री ने, पर विकेट के लिए दिव्येश आहिर ने 500 रुपया रखा है ओम साई पागीपाड़ा के गेंदबाजों के ऊपर। और जयेश गंजाड़िया ने हैट्रिक विकेट के लिए 1000, जलाराम गारमेंट ने भी हैट्रिक विकेट के लिए 500 रखा है, मिडन ओवर के लिए भी 500 रखा है और हैट्रिक सिक्सेस के लिए भी 500 रखा है। तो यहां से अब रणनीति बदलने की, सोच बदलनी होगी, खेलने का तरीका बदलना होगा, तब जाके विकेट चटका सकते हो। आपको मैच को जीतने के लिए ये 2 जो सलामी जोड़ी है इनको पहले डगआउट का रास्ता दिखाना होगा। तो देखिए यूट्यूब पर भी 1300 लोग लाइव देख रहे हैं। आज यहां पर हम यूट्यूब ओम साई स्पोर्ट के माध्यम से जो यूट्यूब लाइव कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, उस पे भी 1300 लोग लाइव आज के ये मुकाबले को देख रहे हैं। सुबह 30,000 थे, अब घट चुके हैं। ठीक है, शाम का वक्त है, गेंदबाज को सोचना चाहिए, फील्डर को भी गुजारिश तो और मैदान पे देखिए लाइव 1300 और मैदान के बीच तो लगभग 40-50 हजार हो गई। फिलहाल अगली गेंद अक्षु आया गेंदबाजी करने के लिए, ये देखिए उड़ाई गेंद नीचे डीप में, फील्डर क्या विकेट मिलेगी। और ये जी हाँ बड़ी विकेट 20 साल की, जिसकी मैं तलाश कर रहा था वही मिला। अक्षुण आते ही गेंदबाजी देखिए क्या कमाल की रुख अपनाई थी गेंदबाजी में। बड़े खिलाड़ी को पैविलियन भेज दिया, जो कई बार मैच ऑफ द सीरीज हुए बल्लेबाज को जल्दी पैविलियन डगआउट पे भेज दिया। तो ये दबाव है गेंदबाज के ऊपर, फिर से वापस वही दिशा में गेंदबाजी करने की कोशिश करते हुए। यहां से और एक विकेट चाहिए ओम साई पागीपाड़ा को अगर मैच को जीतना है तो। क्या मिलेगा, इसी ओवर से मिलेगा। पर रियो मैदान के ऊपर और एक पैकर को लाया गया, आइकॉन बनाम टू आइकॉन। एक तरफ अक्षु यहाँ के आइकॉन सरीगाम के, तो एक तरफ रियो विनय, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। 12 देखिए टप्पा खाने के बाद क्या तेजी की रफ्तार के साथ गेंद निकली, बीट किया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं। तो प्रेशर, जो मनोवैज्ञानिक क्रिकेट की भाषा में कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेशर बढ़ाया है बल्लेबाज के ऊपर। हैट्रिक विकेट के लिए पैसा लगा है, हर एक विकेट के लिए पैसा लगा, हर एक सिक्सर के लिए लगा है। पर यहां से ये गेंद नतीजा तय करेगी। ये गई गेंद, कहां गई, कोसों दूर, ये गुमशुदा के अंदर में जा पहुंची और टाटा बाय बाय। तो गेंद एक बार फिर से लौट आई है, पर टीम का स्कोर 6 के बदौलत 22। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी चलती रही तो फिर यह मौका जयजुगमोड़ी पाली के लिए संभव है, लेकिन एक आध विकेट अगर यहां चटका लेते तो फिर दबाव पूरी तरह से।
लेकिन इस बार फिर से बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, ये 6 और 1 कमाल की। देखिए इनामों की बौछार लगाई थी, इनाम जो दोनों तरफ से बॉलरों के लिए भी है, बल्लेबाजों के लिए कमलेश भाई करेंगे अवसर पर भी 1100 लगाए हैं और गजेश गज्जा ने विकेट पर उड़ा हैट्रिक पर 1000 रुपया। उसके बाद और भी बहुत सारे इनाम हैं। सरीगाम जी राकेश राय की ओर से 11,000 रुपया है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ बल्लेबाजों ने, जय जुगमणी पाली के बल्लेबाजों ने ठान लिया है कि भाई यहाँ से तो अभी भी गति बढ़ाएंगे हम, और टीम का स्कोर देखिए 28 रन तक तो पहुंचा दिया है, 60 तक जाना है पारी का। ये दूसरा ओवर है, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आनी शेष है। रन रेट सही चलता हुआ फिलहाल दोनों टीमों के लिए 50-50 चांस वाला मैच है ये। ये हैट्रिक की तलाश, अब हैट्रिक, ये लो फुल टच गेंद गति से बीट किया, पर गैप में धकेली गेंद को अश्विन डीप में देना था एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्ड करे तब तक एक सिंगल, 2 छक्के, उसके बाद एक सिंगल, एक बड़ी सोच बल्लेबाज की, सामने छोर से बल्लेबाज को लाया। जानते ये भी फॉर्म में चलते हुए पंकज ड्यू भी, और रियो की क्या बात करे, आते बैक टू बैक 2 बड़े सिक्सेस लगाए, मैच में वापसी दिलाई टीम के लिए। और यहां से पूरी तरह से सदमे में ओमसाई पागी पड़ा 11, सोच बड़ी, पर उनके सामने दुविधा 2 खड़ी है, एक विनय रियो और पंकज ड्यू। ये एक बार गैप में भी और लंबी चेज है, और 2 फील्डर के बीच से गेंद निकल जाएंगी सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। देखिए पहले 16 आए थे, अभी 17 आए, तो 12 में अब 27 चाहिए, तो जो रन रेट चाहिए था वो तो फिलहाल बरकरार रखा है। पर यहां से एक अच्छी ओवर मैच तो वापस ला सकती है। यहाँ से पाकीपाड़ा को सोचना, सरीगाम उनसे सोचना चाहिए कि एक आध विकेट या तो फिर एक ओवर अच्छा हो जाए, तो कुछ वापस वो जो गति है उस पर रुकावट बल्लेबाजी में लानी ही पड़ेगी, यहाँ तो से फिर तक मुश्किलात पड़ेगी। यहां से देखिए दोनों बल्लेबाज पैकर के रूप में है, आइकॉन खिलाड़ी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते, दोनों में से एक की विकेट आपको मैच में वापस ला सकती है। और विकेट के बाद अब 4 गेंदें डॉट निकालिए, उसके बाद देखिए कमाल, आखिरी ओवर का कमाल देखिए किस तरह से मैच वापस आएंगी। पर अश्विन एक कारगर गेंदबाज आया बॉलिंग मार्क के ऊपर, ये जानते हैं किस तरह से गेंदबाजी करनी है, ये कारगर साबित होते। पिछला मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अश्विन लेकर आए थे उस मैच, विकेट भी चटकाया था तब। जो पिछली जो 2 मैच जीते उसमें अश्विन कोला का बहुत बड़ा योगदान था। कितनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, पूरी श्रृंखला में देखा जाए तो एक अच्छे गेंद पर विकेट टेकर तो साबित हुए ही, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी उन्होंने बीट किया है। अभी यहाँ चुनौती है उनके लिए, उनकी परीक्षा है। टीम को देखा जाए तो सबसे प्रमुख गेंदबाज में से एक, और ये परीक्षा अभी इस मैच में है क्योंकि फाइनल है, सामने बड़े बल्लेबाज है, वो तो प्लेसमेंट करेगा ही नहीं, और अश्विन सोचेगा कि भाई एक आध मुझे विकेट यहाँ से उनका चटकाना है। फिलहाल दोनों की यहाँ परीक्षा है। उनके पास वो पेस अटैक है, उनके पास वो पेस है, गति में बीट करते हैं, कभी कभार स्लो कभी फास्ट। यॉर्कर लेंथ की गेंद, बुमराह का यॉर्कर याद है ना, ताज का जॉकर और बुमराह का यॉर्कर, वैसा ही कुछ करना होगा। ये देखिए इस गेंद की तलाश थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद जड़ से निखोद के निकाली, पर 1 रन देकर जाएंगी। अब सामना पंकज बनाम अश्विन के बीच में, देखो मैंने बताया ना लई कितना बढ़िया उसका, ये मिडल पे गेंद रखी थी, थोड़ा सा चूक हो जाता था, वेस्टम भी कर सकती थी, लेकिन कमाल की एफर्ट बल्लेबाज ने लगाई, बहुत अच्छा शॉट खेला उन्होंने, खेला चाहे हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद को नीचे रखी अश्विन ने, नतीजा सिंगल में ही तब्दील हुआ और टीम का स्कोर अभी फिलहाल 34 रन। अश्विन जानते जब तब गेंद को हवा मिले तब तब हवा से बाहर गई है तो ब्लॉक होल में ही गेंद करनी है, पर हौसले बुलंद है जय जोगमोटी पाली 11 के भी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब 11 गेंदे 26 रन। इस बार रेस लंबी रेस, द चुंबक मैन है सामने और विकेट जीगू। अश्विन आए हैं, विकेट चटका दे, और वही क्या द चुंबक मैन जीगू, इनके पास वो क्षमता है, चुंबक एक धातु को चिपक जाता है लोहे को, वैसे ही इनका हाथ गेंद से चिपक जाता है। भाई पिछले मैच में भी उन्होंने वहीं पे जीगू ने कैच पकड़ा था और इसी अंदाज में पकड़ा था। ये क्षेत्ररक्षक बहुत ही होनहार है। तो अभी थोड़ा दबाव अभी पड़ता हुआ यहाँ से, रन रेट तो सही चलता हुआ जय जोगमणी पाली के लिए भी अभी भी मैच ऑन है, ये मुकाबला 50-50 चांस वाला है।
कौन जीतता है यहाँ से कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश दोनों तरफ से हो रही है कि मैच हम जीतेंगे। देखेंगे आगे क्या होता है। फिर से अगली गेंद, इस बार फिर से हवा में गेंद पर गैप में अश्विन अगर हैट्रिक विकेट चटका दे उनके ऊपर इनाम रखा है 1100 रुपया। पर देखिए गैप में पर एक सिंगल रन, गणेश वहां पर क्षेत्र रक्षक की भूमिका निभाते हुए काफी होनहार क्षेत्र रक्षक। मैच अब आ चुका है, इस ओवर से काफी किफायती गेंदबाजी हुई, 3 गेंदें हुई हैं, अब तक 2 रन खर्च किए, 1 विकेट भी अपने नाम किया है। 9 गेंदे 25 रन चाहिए अब, 9 गेंदों में 25। तो यहां से और एक डॉट गेंद, इस रियो ऑफ स्टंप से बाहर खराब गेंदबाजी मायवान होगा, पर अतिरिक्त रन वाइड के रूप में अब 9 गेंदे 24 रन। यहां से 2 गेंदे शेष अच्छी करनी है आपको, आप मैच में अपने आप वापस आओगे। और जगह पाली को चाहिए 4 बड़े हिट। अभी कौन सा बल्लो देखेंगे। अश्विन कोला फिलहाल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे टीम के लिए, उनको मालूम मैच बचाना है। तो रियो के पास क्षमता है, 2 ताकत बल्ले शॉट दिखाए हैं, पर इस बार जड़ में यॉर्कर लेंथ की गेंद, ये हथियार है अश्विन कोला का, ये हथियार है, जड़ में डालने का हथियार है। मैं पहले बता चुका हूं सर आपसे कि ताश के पत्ते का जॉकर और बुमराह का यॉर्कर ये अश्विन के पास है। और सेम के बॉलर थे रबाड़ा, क्या गेंदबाजी की थी, ये याद रहेगा बल्ले के गेंदबाज को। वो मिचेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, वैसे ही कुछ सीने से छू कर जाती है, ज्यादातर बाउंसर टीम इंडिया के बल्लेबाज खेल नहीं पाते, वैसे ही कुछ कटर गेंदबाजी करते हैं विकास रबाड़ा। पुनः टी11 में जरूर उन्होंने जगह बनाई थी, सेमीफाइनल हारी जरूर है, पर यह मुकाबला डंडे पे ये गई, आ गई विकेट, आ गई विकेट, जिसकी तलाश थी, इंतजार की घड़ी खत्म। तो सब महका दिया है अश्विन कोला ने। देखिए बगुसर, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, यॉर्कर आखिरकार जॉकर बन गया, बल्लेबाज जॉकर। देखो अभी भी मैच ऑन है, 7 में 24 चाहिए। मैं कप्तान बल्लेबाज को बता दूं 7 गेंदों आपको खेलनी है, 4 बड़े हिट चाहिए कि मैच को जीतने के लिए। फिलहाल अश्विन कोला सफल साबित हुए बड़ी गेंदबाजी की। तो देखिए 7 गेंदे 24 रन, अब नए बल्लेबाज आए विकास। तो देखिए 3 विकेट खोदे हैं जय जोगमुंडी पाली ने, अब यहां से 7 गेंदे 24 रन, विकास के पास भी वो क्षमता है बल्लेबाजी के लिए, पर 7 गेंदे 24 रन किस तरह से बनाने, क्या आने वाली गेंद पे विकेट मिलेगा या छक्का लगेगा विकास के बल्ले से। अश्विन कोला अवर दी विकेट विकास के लिए, ये भी पाले में, और ये सीधी स्टैंड में, सीधी स्टैंड में, और ये देखिए हमारे मुख्य अतिथि मेहमान के पास जाकर गिरी। आपके कदमों में मेरा सर जहां। देखो देखो 2 बार ऐसा मैच ऑन है। मेहमान को भी नहीं देख रहे, बिल्कुल 6 सर ज्योमेट्री बॉक्स में सीधा बॉल आ गया ये। अंपायर से गुजारिश के जल्द से जल्द खेल शुरू करें। 6 गेंदे 18 रन बचे हैं, 6 गेंदे 18 रन बचे हैं, और दर्शकों जाएंगे मत, हमारी संस्कृति के ताशे है, तूर थाली डांस है, तारपा डांस है, कुछ प्रोग्राम हो गए। और 6 में 18, 3 बड़े हिट, और यहाँ पे चाहिए उनको विकेट। ओम साई पागी पाड़ा यही सोच में कि 1-2 विकेट यहाँ चटका ले। हैट्रिक के लिए जयेश भाई गंजारिया ने 1100 रुपए का नगद पुरस्कार गेंदबाज के लिए रखा है। फिलहाल 6 में 18 देखिए सोच में सर 6 चेंडू અને 18 धावा की गरज है। तो देखिए यहां पर अब गणेश को बुलाया गया, आखिरी 6 ही गेंदे 18 रन। ओ भाई विद्या, तो भाविक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं,
उनके पास भी क्षमता है बड़े हिट लगाने पर। 6 गेंदे 18 रन किस तरह से बनाएंगे गणेश। लक्की चैम्स है ओम साई पाकीपाड़ा के लिए। तगली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पे करारा हुक शॉट किया है पर डाउन डी ग्राउंड। अश्विन कोला डीप में 1 हैंडेड एफर्ट। दूसरे का प्रयास विकास पर मना किया। अब 5 गेंदे 17 रन। 5 गेंदे 17 रन उल्टी गिनती। अब तो यहां से 5 गेंदे आपको पहली 2 गेंदे निर्णायक। 5 गेंदे 17 रन। 4 गेंदों का खेल है पर आपको करने होंगे 5 गेंदे। 1 गेंद अंपायर से गुजारिश जल्द से जल्द खेल शुरू करे। समय को समय दीजिए समय आपको समय देगा। अभी भी मौका है आपके पास। 5 गेंदे बची है। आप 3 बड़ी हिट लगा दीजिए मैच अपने आप बनेगा। बोल बोल बोल। अगर इस गेंद पे गणेश विकेट झटकाते हैं इस ओवर में तो विरल दादा से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा विकेट के लिए गणेश को। आखिरी ओवर आखिरी 5 गेंद और ये देखिए टप्पा करने के बाद घूमे अतिरिक्त रन वाइड रन बोनस रन मिलते हुए मैच में जान। अब 5 गेंदे 16 रन। देखिए एक सिली पॉइंट रखा ऑफ साइड पे सावधान की स्थिति में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और एक अतिरिक्त रन। प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर नहीं प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है। विकेट के लिए 2100 का इनाम रखा है विरल दादा ने और हर एक विकेट के लिए दिव्य आहिर ने भी इनाम रखा है 500 हैट्रिक सिक्सिस के लिए। इस बार उड़ाई गेंद को हवा में गेंद लटकती हुई नीचे फील्डर अश्विन बोया आइकॉनिक खिलाड़ी विकेट के 2100। कहां गए विरल दादा 500 गए आपके से। प्रदीप नए बल्लेबाज प्रदीप। 4 गेंदे 15 रन 2 बैक टू बैक अतिरिक्त रन। उसके बाद देखिए कमाल की एक विकेट। सिली पॉइंट देखिए किस तरह स्टेच्यू बन के खड़े हैं। अगली गेंद विकेट मिलेगी क्या। इस बार आड़े बल्ले से पर एक सिंगल रन देकर जाएंगी। अब 3 गेंदे 14 रन। 3 गेंदे संभव है मोती भाई। आने वाला जो गेंद है उसके ऊपर निर्भर है अभी मैच। 3 deliveries and 14 runs to win this game now. Very successful bowler Ganesh, wicket taker bowler. 3 deliveries 14 runs. What a deal, what a timing, what a goal, 4 runs should be 4. अभी चाहिए देखो 4 कम हो गए 10 2 में 10। 2 deliveries and 10 runs. 2 big hits needed. तो 50 लग चुके स्कोर बोर्ड पे। 10 चाहिए 2 गेंदों में 50 लग चुके हैं। क्या 2 गेंदों में 10 का दम दिखाएंगे या 10 का पंच दिखाएंगे। कंपल्सरी चेस टू विन। कंपल्सरी चेस टू विन। 2 गेंदे 10 रन। क्या इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट आएगी या चौका मिलेगा। इस बार मोटा एज विकेट कीपर के ऊपर से जाती हुई पर अब तो 9वां लगाना होगा। ISPL का 9वां लगाना होगा। ओए ओए बैठ जाए कोई ग्राउंड में नहीं जाएगा जब तक गेंद खत्म ना हो तब तक ग्राउंड में कोई नहीं जाए। बैठ जाए नीचे सब। कोई ग्राउंड में नहीं जाएगा। आखिरी गेंद 9 रन। आखिरी गेंद 9 रन। कंपल्सरी चेस टू विन। आप 8 मारो या 9वां आपको बचा सकती है तो केवल 9 बॉल।
आपको बचा सकती थी केवल 9 बॉल। आखिरी गेंद 9 रन। दर्शकों की संख्या अब खड़ी हो गई, दिल थाम लीजिए, 9 रन कैसे बनेंगे? ये तो मैंने भी नहीं देखे, आखिरकार मुकाबला जीत लिया।